وہ زمانہ تھا جب بغداد کی گلیوں میں راتیں صرف اندھیری نہیں ہوتی تھیں بلکہ رازوں سے بھری ہوتی تھیں۔ دن کے وقت بازاروں میں مسالوں کی خوشبو، ریشمی کپڑوں کی چمک اور تاجروں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ مگر سورج ڈھلتے ہی شہر کا ایک دوسرا چہرہ جاگ اٹھتا تھا، ایک ایسا چہرہ جسے عام لوگ دیکھنے سے ڈرتے تھے۔ انہی دنوں بغداد کے لوگوں کی زبان پر ایک نام خوف کی طرح گردش کرتا تھا۔ لوگ اسے ڈاکوؤں کا سردار کہتے تھے، کچھ اسے راہزن کہتے، کچھ قاتل اور کچھ تو اسے شیطان کا ساتھی تک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں قافلے لوٹ لیتا ہے، امیروں کے خزانے خالی کر دیتا ہے اور جو اس کے راستے میں آئے وہ زندہ نہیں بچتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے اسے قریب سے دیکھا نہ تھا، صرف افواہیں تھیں اور خوف۔ اسی بغداد کے ایک پسماندہ محلے میں ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ دیواروں پر مٹی کی تہ تھی اور دروازہ اتنا پرانا کہ ہوا چلتی تو چرچرا اٹھتا۔ اس گھر میں ایک بوڑھی بیوہ عورت اور اس کی جوان بیٹی رہتی تھی۔ لڑکی کا نام زینب تھا۔ زینب حسن میں بے مثال نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی، آواز میں نرمی اور چال میں وقار۔ وہ دن بھر محنت کرتی، لوگوں کے کپڑے سی دیتی، کبھی کسی کے گھر روٹیاں پکا دیتی تاکہ ماں کا علاج اور گھر کا خرچ چل سکے۔ اس شام بھی وہ محلے کے کنویں سے پانی بھر کر واپس آ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ہلکی نیلی تاریکی پھیل رہی تھی۔ گلی سنسان تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ گلی کے موڑ پر ایک سیاہ چادر اوڑھے شخص کھڑا تھا، چہرہ سایوں میں چھپا ہوا، مگر نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ زینب کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، دل زور سے دھڑکا، مگر وہ نظریں عجیب تھیں۔ ان میں وہ درندگی نہیں تھی جس کا خوف ہونا چاہیے، بلکہ جیسے کوئی گہری سوچ میں ہو۔ اس رات وہی سیاہ چادر والا شخص ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں مشعلیں جل رہی تھیں، دیواروں پر تلواریں لٹک رہی تھیں اور چند آدمی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ سردار آ گئے، کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ شخص آہستہ سے بیٹھ گیا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ خاموش تھا، جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ اس کے ایک ساتھی نے حیرت سے پوچھا، سردار خیریت تو ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے پہلی بار دھیمی آواز میں کہا، آج میں نے ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے جس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایمان تھا۔ کمرے میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ سردار نے مٹھی بھینچ لی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، مگر دل آج پہلی بار بے قابو ہوا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ ادھر زینب کو اگلے دن بازار جانا تھا۔ ماں کی دوا ختم ہو چکی تھی۔ وہ دوپہر کو نکلی، بازار سے واپس آتے ہوئے گلی کے سنسان حصے میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا منہ دبایا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ سامنے وہی سیاہ چادر والا شخص کھڑا تھا اور اس کی گہری آواز گونجی، خوف زدہ مت ہو، تم میرے پاس محفوظ ہو۔ زینب کا دل دہل گیا، کیونکہ اسے فوراً سمجھ آ گیا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہی وہ خوفناک نام تھا جس سے پورا بغداد کانپتا تھا اور وہ اغوا ہو چکی تھی۔ زینب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً دوپٹہ سنبھالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس خوف میں بھی ایک عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے وہ ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ سیاہ چادر والا شخص چند قدم دور کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لایا۔ زینب کے لب ہلے، تو پھر کیوں؟ آواز لہز رہی تھی، مگر سوال صاف تھا۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جملہ سن کر زینب کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ خوف کچھ کم نہ ہوا، مگر الجھن ضرور بڑھ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ زینب نے ہمت جمع کر کے کہا، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، آپ نے مجھے اس طرح اٹھا لیا، یہ ظلم ہے۔ لفظ ظلم سن کر اس شخص کے چہرے پر ایک ہلکی سی چوٹ کا اثر آیا۔ وہ فوراً پلٹا اور چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے آہستہ کہا، لوگ مجھے ظالم ہی کہتے ہیں۔ یہ سن کر زینب حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار غور سے اس شخص کو دیکھا۔ چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں تھکن تھی، مگر ان آنکھوں میں درندگی نہیں تھی، جیسے کوئی بہت کچھ جھیل چکا ہو۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی خادمہ اندر آئی، ہاتھ میں کھانے کی تھالی تھی۔ بیٹی کچھ کھا لو، اس نے شفقت سے کہا۔ زینب نے فوراً سوال کیا، میری ماں کہاں ہے؟ وہ اکیلی ہے، بوڑھی عورت نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس کی فکر نہ کرو، اس کے گھر
राशन भी पहुंचा दिया गया है और हकीम भी। ज़ैनब चौंक गई। किसने? बूढ़ी औरत ने नजरें झुका ली, मगर जवाब वाज़ेह था। ज़ैनब ने बेख्तियार उस स्याह चादर वाले शख्स की तरफ देखा। वो खामोश खड़ा था। रात गुजर गई, मगर ज़ैनब की आंख न लगी। वो बार बार सोचती रही कि आखिर ये आदमी है कौन? अगर ये वाकई वही खौफनाक सरदार है तो इसका रवैया ऐसा क्यों है? अगले दिन फजर के वक्त उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। कुरान की तिलावत। आवाज धीमी थी मगर साफ। वो चौंक कर उठ बैठी। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। कुछ लम्हे बाद उसने दरवाजे की दर्ज से झांका। वही सरदार सजदे में था, लंबे सजदे में, जैसे किसी से गिड़गिड़ाकर बात कर रहा हो। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। क्या एक डाकू इस तरह नमाज पढ़ सकता है? उसके जहन में सवाल उभरे, मगर जवाब न मिला। दिन गुजरते गए। सरदार उससे कम ही बात करता था। जब भी आता फासले पर बैठ जाता। कभी उसकी खैरियत पूछ लेता, कभी उसकी माँ के बारे में खबर दे देता। एक दिन ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपने मुझे क्यों चुना? बगदाद में बहुत सी लड़कियां होंगी। सरदार ने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दुनिया की लालच नहीं थी, बल्कि अल्लाह का खौफ था। ये सुनकर ज़ैनब खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मगर जो काम आपने किया वो तो अल्लाह को पसंद नहीं। ये जुमला तीर की तरह लगा। कमरे में खामोशी छा गई। सरदार ने नजरें झुका ली। चंद लम्हे बाद उसने आहिस्ता कहा, मैं जानता हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि ज़ैनब खुद हैरान रह गई। उसी शाम किले के एक हिस्से में शोर उठा। कुछ आदमी एक जख्मी शख्स को उठाए अंदर ला रहे थे। सरदार, ये काफले वालों ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा कर लाए हैं। ज़ैनब दरवाजे के करीब खड़ी सब देख रही थी। उसने देखा कि सरदार फौरन दौड़ कर आया। फौरन हकीम को बुलाओ। उसकी आवाज में घबराहट थी, एक सच्चे साथी की फिक्र। फिर उसने अपने हाथों से जख्मी आदमी का सर सहारा दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ। वो मंजर ज़ैनब के दिल में उतर गया। ये वो दरिंदा नहीं लग रहा था जिसकी कहानियां शहर में सुनाई जाती थीं। ये तो एक जिम्मेदार इंसान लग रहा था। मगर हकीकत क्या थी वो अभी तक नहीं जानती थी। रात को जब सब सो गए, ज़ैनब ने पहली बार दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये इंसान बुरा नहीं तो इसे सीधा रास्ता दिखा दे। उसे मालूम नहीं था कि इस दुआ का असर जल्द जाहिर होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। किले के सहन में जलती मशअलों की रोशनी दीवारों पर लरसती हुई परछाइयां बना रही थी। हवा में रेत की हल्की सी खुशबू थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ज़ैनब को नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में मुसलसल एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये आदमी आखिर है कौन? अगर ये वाकई डाकुओं का सरदार है तो इसके अंदर ये नरमी क्यों है? और अगर ये नरम दिल है तो फिर इसने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? उसे अगवा क्यों किया? इसी बेचैनी में वो उठकर कमरे के दरवाजे तक आई। बाहर सहन में हल्की रोशनी थी। वही सरदार तन्हा बैठा था, सर झुका हुआ, हाथों में तस्बीह। वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसकी आवाज में ऐसी टूटन थी जैसे कोई अंदर से बिखरा हुआ हो। ज़ैनब के कदम खुद ब खुद रुक गए। इसी लम्हे सरदार ने सर उठाया, उसे दरवाजे पर खड़ा देख लिया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर उसने आहिस्ता कहा, सोई नहीं तुम? ज़ैनब ने नफी में सर हिला दिया। कुछ देर खामोशी रही। फिर न जाने क्यों ज़ैनब के लबों से निकल गया, आप खुश नहीं हैं। ये सुनकर वो चौंका, जैसे किसी ने उसके दिल का राज पढ़ लिया हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट में दर्द था। खुशी वो तो बरसों पहले कहीं रह गई। फिर अचानक वो खामोश हो गया। लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहता है मगर रोक रहा है। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। सुबह के वक्त किले के दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा शख्स आया, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर परेशानी। पहले पहरादार उसे भगाने लगे, मगर शोर सुनकर सरदार बाहर आ गया। क्या बात है? बूढ़ा शख्स रोते हुए बोला, मेरे बेटे को शहर के अमीर ताजिर ने कैद करवा दिया है। कर्ज अदा नहीं कर सका, वो उसे गुलाम बना रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? सरदार की आंखों में एक लम्हे को सख्ती आई। कितना कर्ज है? बूढ़े ने रकम बताई। सरदार ने फौरन अपने साथी को हुक्म दिया, इतनी रकम ले जाओ और लड़के को आजाद करवा कर बाप के हवाले करो। बूढ़ा शख्स सजदे में गिर गया। अल्लाह तुम्हें जजा दे बेटा, लोग कहते हैं तुम जालिम हो, मगर तुम तो। सरदार ने फौरन उसे उठा लिया। बस दुआ करो अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये मंजर ज़ैनब दूर खड़ी देख रही थी। उसके दिल में पहली बार यकीन की एक किरण पैदा हुई। ये आदमी वैसा नहीं जैसा लोग कहते हैं। मगर उसी रात एक और वाकया हुआ जिसने उसे फिर उलझा दिया। कुछ
आदमी एक काफिले का माल लेकर आए, सोने के थैले, कीमती कपड़े। सरदार, काम हो गया। जैनब के दिल में धचका लगा। तो ये सब सच था, ये वाकई काफिले लूटते हैं। उसकी सारी हमदर्दी एक लम्हे को टूट गई। ये नेकी भी करता है और जुल्म भी। वो उलझन में पड़ गई। इसी रात पहली बार सरदार ने खुद उससे बात शुरू की। तुम मुझे बुरा समझती हो ना? जैनब ने खामोशी से नजरें झुका ली। वो हल्का सा मुस्कुराया। सही समझती हो। फिर कुछ देर बाद उसने आहिस्ता कहा, लेकिन हर कहानी वो नहीं होती जो लोगों को नजर आती है। ये जुमला कहकर वो उठ गया। जैनब उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, जैसे हकीकत अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। उसी रात कले के एक कमरे में सरदार अकेला बैठा था। उसके सामने तलवार रखी थी। वो उसे देख रहा था जैसे किसी फैसले के दहाने पर खड़ा हो। उसके लबों से धीमी आवाज निकली, या अल्लाह, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मगर अगर ये लड़की मेरी किस्मत में नहीं तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं इसे आजाद कर सकूं। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। इधर जैनब को मालूम नहीं था कि जल्द ही उसके सामने एक ऐसी हकीकत आने वाली है जो उसके दिल की दुनिया बदल देगी। अगली सुबह फिजा में एक अजीब सी संजीदगी थी। किले के सहन में मामूल से ज्यादा खामोशी थी, जैसे कोई गैर मामूली बात होने वाली हो। जैनब अभी वुजू करके नमाज से फारिग हुई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी खादमा अंदर आई। बेटी, सरदार तुमसे बात करना चाहते हैं। जैनब का दिल एक लम्हे को तेज धड़का। पिछले चंद दिनों में उसके दिल में खौफ की जगह एक अजीब सी उलझन ने ले ली थी। वो उस शख्स से नफरत भी करना चाहती थी, मगर कर नहीं पा रही थी। वो सहन में आई। सरदार वहां खड़ा था, मगर आज उसके चेहरे पर मामूल की सख्ती नहीं थी, जैसे कोई बोझ उतारने का इरादा कर चुका हो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने सीधा कहा, मैं आज तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। जैनब के दिल में हल्की सी कपकपाहट हुई। कौन सा सच? वो आहिस्ता बोला, वो सच जो शायद तुम्हें मुझसे और ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर दे। फिर उसने गहरा सांस लिया। मैं काफिले नहीं लूटता, मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जो दूसरों का हक खाते हैं। सूदखोर, जालिम ताजिर, वो अमीर जो गरीबों को गुलाम बना लेते हैं। जैनब चौंक गई। सरदार ने बात जारी रखी, और जो कुछ आता है उसका ज्यादा हिस्सा उन लोगों तक पहुँचता है जिन्हें कोई सहारा नहीं होता। ये सुनकर जैनब के जहन में वो बूढ़े शख्स वाला मंजर ताजा हो गया। फिर उसने आहिस्ता पूछा, तो लोग आपको जालिम क्यों कहते हैं? सरदार ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि जिन्हें मैं नुकसान पहुंचाता हूं वही दुनिया में आवाज बुलंद रखते हैं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसका कोई जवाज नहीं, और वो मैंने तुम्हारे साथ किया। जैनब का दिल धड़क उठा। सरदार की आवाज में नदामत साफ महसूस हो रही थी। मैंने तुम्हें इग़वा किया क्योंकि मैं डर गया था। डर गए? जैनब ने हैरत से पूछा। हाँ, उसने आहिस्ता कहा, मैंने जिंदगी में कभी किसी को खोने का खौफ महसूस नहीं किया, मगर तुम्हें देखकर पहली बार लगा कि अगर तुम मेरी ना हुई तो शायद मैं फिर कभी सुकून नहीं पा सकूंगा। ये एतराफ सुनकर जैनब खामोश रह गई। उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। ये मोहब्बत थी या कमजोरी, वो समझ नहीं पा रही थी। इसी लम्हे किले के दरवाजे पर शोर मचा। एक आदमी घोड़े पर तेजी से आया। सरदार, शहर के सिपाही आ रहे हैं, किसी ने मुखबरी कर दी है। फिजा में तनाव फैल गया। साथी हथियार उठाने लगे, मगर सरदार ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई लड़ाई नहीं होगी। सब हैरान रह गए। लेकिन सरदार, वो हमें मार देंगे। वो मजबूत आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह का खून बहे। फिर उसने जैनब की तरफ देखा। उस नजर में अजीब सुकून था। शायद यही वक्त है। जैनब का दिल बेख्तियार डूबने लगा। क्या वक्त? सरदार ने आहिस्ता कहा, तुम्हें आजाद करने का। ये सुनकर जैनब के अंदर कुछ टूट सा गया। वो खुद भी नहीं समझ पाई क्यों। चंद लम्हों बाद सिपाही किले में दाखिल हो चुके थे। हथियारों की आवाजें, कदमों की धमक। मगर हैरत की बात ये थी कि सरदार ने मुजाहिमत नहीं की। वो खुद आगे बढ़ा और अपने हाथ पेश कर दिए। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैनब साकित खड़ी देखती रही। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा भी कैद हो गया हो। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब फैसला होना था कि एक बदनाम डाकू का अंजाम क्या होगा और एक लड़की के दिल की हकीकत क्या है। काजी और शहर के अमीर लोग जमा थे। इल्जामात पढ़े गए। काफिले लूटना, अमीरों को नुकसान पहुंचाना, रियासत के खिलाफ जराइम। गवाहियां दी गईं। फिर काजी ने सरदार से पूछा, क्या तुम अपने जराइम कबूल करते हो? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने साफ आवाज में कहा, हाँ, जो कुछ मैंने किया
उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मजमे में सरगोशियां होने लगी। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरदार ने एक लम्हे को ज़ैनब की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। नहीं, ये एक लफ्ज था, मगर इसमें पूरी जिंदगी का बोझ था। फैसला सुनाया गया, इस शख्स को कैद रखा जाएगा और अगर मजीद जराइम साबित हुए तो सजाए मौत भी दी जा सकती है। मजमे में शोर उठा, मगर ज़ैनब के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जंजीरों की। उसी लम्हे उसके दिल में अचानक एक एहसास जागा, अगर ये इंसान वाकई बुरा होता तो उसे जाने देता, अपने आप को गिरफ्तार होने देता या लड़कर मर जाता। उसने पहली बार अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं इससे नफरत करती हूँ? जवाब आया, नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन एक हैरानकुन खबर फैली। शहर के गरीब लोग, वही लोग जिन्हें कभी किसी ने अहमियत नहीं दी थी, काजी के दरबार के बाहर जमा हो गए। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, ये जालिम नहीं है, इसने मेरे बेटे को गुलामी से आजाद करवाया। फिर एक औरत आई, इसने मेरे शौहर का कर्ज अदा किया। फिर एक यतीम लड़का, उसने मुझे खाना दिया। एक एक करके गवाहियां सामने आने लगीं। हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। वो डाकू नहीं, मजलूमों का सहारा था। काजी हैरान रह गया, मगर कानून फिर भी कानून था। इसी लम्हे दरबार में एक और आवाज गूंजी, मुझे भी कुछ कहना है। सबने पलट कर देखा, वो ज़ैनब थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर आंखों में खौफ नहीं था। वो आगे बढ़ी, इस शख्स ने गलती की, मुझे अगवा किया और ये गुनाह है। मजमा खामोश हो गया। फिर उसने आगे कहा, लेकिन इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मेरी इज्जत की हिफाजत की, मेरी माँ की खिदमत करवाई और जब इसे मौका मिला तो खुद को गिरफ्तार करवा दिया। उसकी आवाज भर आई, अगर नीयत बुराई होती तो वो ऐसा न करता। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं उसके खिलाफ कोई दावा नहीं करती। बल्कि वो रुक गई, सांस भरी। अगर उसे रिहाई मिले तो मैं उससे निकाह के लिए तैयार हूँ। मजमे में हलचल मच गई। सरदार ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार हैरत थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद काजी ने मशवरा किया। आखिरकार फैसला सुनाया गया। चूंकि मुतासरा लड़की ने माफ कर दिया और शहर के लोगों की गवाहियां मौजूद हैं, इसलिए इसे रिहाई दी जाती है, बशर्त ये कि आइंदा जुर्म नहीं करेगा। जंजीरें खोल दी गईं। सरदार आजाद खड़ा था, मगर बोल नहीं पा रहा था। ज़ैनब उसके सामने आई। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सरदार की आवाज भर आ गई, तुम ये क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने आहिस्ता जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो इंसान देख लिया जो शायद तुम खुद भी भूल चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और क्योंकि तुमने मुझे कैद करके भी आजाद रखा। ये सुनकर सरदार की आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ अरसे बाद बगदाद की एक सादा सी मस्जिद में उनका निकाह हो गया। कोई शाही शान न थी, मगर दिलों में सुकून था। सरदार ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। जो दौलत थी उसका बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। लोग अब भी उसे उसके पुराने नाम से जानते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक नया नाम फैलने लगा, तौबा करने वाला सरदार। रात को कभी कभी वो सजदे में देर तक रोता रहता था, या अल्लाह, तूने मुझे बदनामी से निकाल कर इज्जत दे दी। और ज़ैनब खामोशी से दुआ करती, या अल्लाह, जिस तरह तूने एक गुमराह दिल को रास्ता दिया, हमें हमेशा अपने करीब रख। ये कहानी बगदाद में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, इंसान को उसके माजी से नहीं, उसके दिल से पहचानो, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा बदनाम इंसान के अंदर ही सबसे ज्यादा नेक दिल छुपा होता है।